এই প্রথম দীপাবলি অযোধ্যার রাম মন্দিরের দরজা খোলার পর, তাই বাড়তি উন্মাদনা তো একটা রয়েছে। এই গোটা বিষয়টিকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই দীপাবলিতে নতুন করে উত্তরপ্রদেশকে সাজিয়ে তুলেছে প্রশাসন। উদযাপনের জন্য রীতিমতো মহা সমারোহের আয়োজন করা হয়েছে। তেমনি বিভিন্ন ছোট ছোট বিষয়গুলিও যাতে পরিপক্কভাবে করা যায় সেই দিকটাও মাথায় রেখেছে সরকার। কিন্তু আপনি ভাবলে অবাকই হবেন যে এই দীপাবলিতেও নাকি রাজনীতি। এহেন আয়োজনের রীতিমতো ব্রাত্যই দেখা গেল খোদ স্থানীয় সাংসদ অবধেশ প্রসাদকে। তাকে নাকি আমন্ত্রণই জানানো হয়নি বলে খবর, এমনকি কোনো পাসও দেওয়া হয়নি তাকে। আর এই গোটা বিষয়টা নিয়ে বেশ ক্ষেপেই গিয়েছেন সাংসদ। সমাজবাদী পার্টির এই বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছে না, তা নিয়ে রাজনৈতিক পারদও চড়েছে। সরজু নদীর তীরে 25 লাখ প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজেদেরই গত বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙতে উদ্যত হয়েছে প্রশাসন। তা নিয়ে প্রস্তুতিও তুঙ্গে। তবে এখানে থেমে না থেকে নতুন করে রেকর্ড তৈরি করতে চাইছে। গণসন্ধ্যারতির আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে অংশ নেবেন 1100 অযোধ্যাবাসী। বিভিন্ন রকম আয়োজনের পাশাপাশি রাখা হচ্ছে ড্রোন শো। এই প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বাতাসের জন্য প্রদীপ নিভে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, তাই 28 লাখ প্রদীপ জ্বালানো হবে। এই গোটা বিষয়ে রাজনৈতিক পারদ আরও তুঙ্গে। লোকসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ার ক্ষতে প্রলেপ লাগাতেই কি আয়োজন প্রশাসনের, এই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। 2019 সালে উত্তরপ্রদেশে 62টি আসন জিতেছিল এনডিএ, কিন্তু এবার সেই সংখ্যাটাও কমে গিয়েছে। হারতে হয়েছিল অযোধ্যার কেন্দ্র ফৈজাবাদেও। এরপরে কি এই গোটা বিষয় নিজেদের আরও সংগঠিত করতে প্রশাসন মরিয়া? উঠছে প্রশ্ন, পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেভাবেই হোক এই জমি ফের শক্ত করে ধরতে বিজেপি বিশাল পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত। ঘুরে দাঁড়িয়ে মোদি শাকে অক্সিজেন দিতে চাইছে যোগী সরকার। সেই দিকে তাকিয়ে দীপাবলিতে নতুন ভাবনায় সরকার, তাই রাজনীতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। অযোধ্যার যে কেন্দ্রের অন্তর্গত সেই ফৈজাবাদ কেন্দ্রের সাংসদকেও নাকি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ, বিজেপি একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়েও রাজনীতি করছে। আমি ভাগ্যবান যে অযোধ্যার পবিত্র ভূমি থেকে সাংসদ হয়েছে, কিন্তু বিজেপি এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়েও রাজনীতি করছে। কি বলছেন সাংসদ অবধেশ প্রসাদ, শুনবো। बीजेपी का ये आरोप निराधार है और ये राजनीतिकरण, मैंने कह दिया ना कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्यौहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि अनेकता में एकता, ये हमारे देश की मजबूत सूत्र हैं। इसी सूत्र के आधार पर हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत है, हमारा राष्ट्र मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको उसको जो है बांट कर मनाना चाहती है। तो क्या दीप उत्सव में भी आज शामिल हो सकते हैं? ऐसा है कि दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है, तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है, न पास आया है। और तो ये कहना कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो हमारा त्यौहार है, सदियों से परंपराएं रही हैं। क्या दिया गया है दीप उत्सव का? अभी तो कोई ऐसा निमंत्रण नहीं दिया गया। बिल्कुल। एक और सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारों को लेकर आपस में एक मतभेद नजर आ रहा है और अब तक फाइनल नहीं हुआ सीट कितनी किसको मिलेगी। देखिए तो ऐसा है, इसका असर दिखेगा। देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महागठबंधन कहते हैं। हाँ, तो इंडिया पार्टी जो बनी है वो सीट के आधार पर नहीं बनी है, ये बहुत बड़े ऊंचे काज को लेकर बनी है। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, पार्टी जो बनी है, ये देश को बचाने के लिए बनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए बनी है। ये इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए बनी है
और आरक्षण बनाने के लिए नहीं है। ये बनी है इस देश में जातीय जनगणना कराने के उद्देश्य बनी है। ये इंडिया गठबंधन पार्टी जो बनी है, इस देश में करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई काम नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, डिग्री जलाने पर उतारू हो रहे हैं, आत्महत्या करने पर सोचते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया गठबंधन इस मकसद से बनी है कि हमें देश में नौजवानों का जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, और जो बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाने का बात करती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एडॉप्ट करके राज करना चाहती है, उससे बचने के लिए और देश को महान बनाने के लिए, जिस देश के लिए इस देश के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी की है, शहीद हुए हैं, उनके सपनों का हंसता हुआ, खिलता हुआ और विकसित होता राष्ट्र बनाने के लिए हमारे नेताओं ने इंडिया गठबंधन किया है। सीटों के बंटवारे का कोई सवाल नहीं है। बड़े काज के लिए, बड़े काज के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, देश को बचाने के लिए, देश में एकता अखंडता सुरक्षित रखने के लिए, आपतदारी और भाईचारा करने के लिए और खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन बड़े काज को लेकर हुआ है। इसमें सीट के बंटवारे उठवारे की तो बहुत छोटी बातें हैं भाई। सपा अकेले लड़ने की बात कहती नहीं, संगठन है वहां लड़ेंगे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, समझदारी से सुनिए। हमने कह दिया ना कि इंडिया गठबंधन बड़े काज के लिए बना है, और इसके लिए हम अपने उन नेताओं को जिन्होंने देश की गिरती हुई हालत को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बड़े मकसद से बनी है, और उसके लिए हम अपने उन तमाम नेताओं को, जिसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और कांग्रेस के आदरणीय राहुल जी हैं, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, उन नेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बनी है वो मकसद पूरा होगा, उसमें कहीं खटास नहीं है, उसमें कोई दुराव नहीं है, और सीटों का बंटवारे के लिए कोई झगड़ा नहीं। तो क्या लगता है अब बात ये बन जाएगी चुनाव तक? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। जब मैंने कहा कि बड़े काज के लिए, बड़ा काज है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।